हाँ, जो मेजर प्रॉब्लम विच द टॉपिक विच आई ऑल्सो डिसाइडेड क्या केस स्टडीज विद लाइव एग्जाम्पल्स. One thing I keep on telling everybody all the time, what I believe in media education. I mean, we can talk about so many things when we refer to education as to what kind of policies should be made, what kind of syllabus can be made, how the things can be delivered, how the evaluation can be done. All that can be discussed. A lot of things have already been done in presentations since yesterday. But in media education, particularly, what is the most important thing is that we do not relate education to the life of the people. तो एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है मीडिया एजुकेशन में वो डिफीट हो जाता है. मीडिया इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? मीडिया इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, ठीक है, दिस नॉलेज लेवल हैज़ टू बी देयर, लैंग्वेज स्किल्स हैव टू बी देयर, प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी देयर, ऑल दैट इज एक्सेप्टेड, दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग. But then whether whatever we are presenting, whatever we are writing, whether that is touching upon the lives of the people or not, how we can make sure that that happens. So we have to pick up examples from the life while we are teaching. Whatever is happening around us on that day or around that time when we are taking a class, so we have pick up examples from there. Most of the teachers fail here. We can refer to this book or that book, we can refer to scholars, and mostly we are referring to foreign scholars. We hardly refer to Indian scholars. We hardly pick up examples from India. We take the cases, this happened in UK, this happened in US, because the knowledge somehow, fortunately or unfortunately, most of the things happen in the West. We simply follow it up. In communication theory, for instance, if I ask anybody to refer to any Indian scholar who would have propagated a communication theory, nobody would ever remember कि इंडिया में भी किसी ने किया होगा. आज भी जितनी बातें हुई हैं, चाहे वो ब्लूम्स की बात हो और चाहे वो रूब्रिक्स की बात हो, इंडिया का कोई रेफरेंस नहीं है. तो इस एक्सरसाइज के पीछे भी जो मेरा सारा ऑब्जेक्टिव था और है और रहेगा वो ये है कि वी ऑल टीचर्स particularly we they should be the thinking being who can come out with new ideas which nobody would have ever thought of, which nobody would have ever thought that even this can be done, right? So these experiments have to be done which are out of the box, which is completely new, which is innovative. You experiment that. Whatever success or unsuccess is there, then you try to amend the way you have been teaching or the way you have been carrying yourself, and then bring some new changes. And then any teacher doing some good experiment which is successful, the fellow teacher can adopt that kind of model, and that is how I put this in the topic itself, developing a education model. I will not criticize that way that whatever presentations have been made that were not up to the mark to the way the whole thing was conceived. I'm not going into the quality of the presentation and all, but the whole concept with which this peer-to-peer FDP we started, that way we are is still somewhere lacking. Either the whole concept is not being understood, or even if it is understood, the teachers, everybody as human being, we have our own limitations. So every teacher has his or her own limitation. So we are not able to break that and come out from that, and then take a challenge to ourselves that we will do something different in our teaching, and then we will be in a position to tell others that this is the experiment that we did and this is the outcome of that kind of experiment. So that's not happening. If that is not happening, we will always be lacking in the standards of education in the entire world. Again, I'm not accusing any teacher or somebody, but then we are not familiar as to what kind of changes are happening in the education spectrum in different countries of the world.
किस यूनिवर्सिटी ने क्या नया एक्सपेरिमेंट किया, क्या नया हो रहा है, वेदर वी आर कन्विंस नॉट कन्विंस, वेदर वी कैन add something to that, or we can add something our own, and then we can bring that kind of method or model in a new light. That kind of efforts are not being done. So that's the major problem in teaching. And in media education, again, I said, since we are more concerned to media education, so how the media as a subject is to be taught. I keep on thinking, and that is how I keep on doing experiment every now and then. Like, I mean, if I give examples of the very recent, I mean, in a month or two, whatever we have done. Like, I came out with the idea that once we are celebrating this Republic Day, how can we do it in an unconventional manner? Now, what is the conventional manner? कि हमने एक फंक्शन रख दिया, डिग्निटरीज को बुला दिया, सबने आधा आधा घंटे भाषण दिया, 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया, और स्टूडेंट एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह बैठे भाषण सुन रहे हैं सबका. सो जो हम स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं लगातार, हाउ द स्टूडेंट्स कैन बी इन द फोर फ्रंट. सो इस बार एक्सपेरिमेंट किया, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, सबको पता है. हमने कहा कि सब लोग रील बनाएंगे, taking, I mean, any subject which is close to the Constitution, close to the Republic Day spirit, close to the independence, and all freedom fighters, and everybody made a reel. तो कोई उसमें भाषण नहीं था, तो स्टूडेंट्स ने बनाया. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल एज टू हाउ आई थिंक हाउ ए न्यू आइडिया कैन बी इन्फ्यूज्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम. एंड व्हेन वी से एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट द classroom delivery always. Classroom delivery is important, I am not denying that, but then media education particularly will succeed only when we come out from the classrooms, right? So and within the classroom, obviously, how the teaching is to be made interesting, that's also a difficult question. But we have to like as jaise Paranjya ne made a presentation on social media, we have to link the education system to whatever is happening today. हम 20 साल पुरानी पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, या जो कल बात हुई थी, गरिमा ने भी कहा कि लेक्चर रिकॉर्ड इज़ फाइन, बट लेक्चर रिकॉर्ड करके क्या करेंगे? बुक्स की भी, आई मीन दिस में भी ये वेरी I mean, such a statement which is difficult to accept, that I very strongly believe that books have a very limited significance in media education. Why? Because today a book is written, tomorrow is published, and by the time after a year or so it lands in the market, the things change. Media, the most important aspect of media, which everybody must understand, media as a sector. Media is one sector which is changing every minute. And we are teaching the students of the things of the past. एक किताब 10 साल पहले लिखी गई थी उसको, और वो भी किसी यूएस में किसी ने लिखी थी, एंड वी आस्क द स्टूडेंट कि उसको पढ़ लो, नोट्स में उसकी फोटोकॉपी लगा के दे देते हैं. नहीं चलेगा. डेवलपमेंट समझाना है तो हमें दिल्ली की 20 एग्जाम्पल उठा देनी होगी. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लाइव एग्जाम्पल्स. ठीक है, एक फ्लाईओवर बना, सपोज बसंत विहार का फ्लाईओवर ले लीजिए आप, उसका ओरिजिनल प्लान क्या था? उस जब प्लान को बनाया गया, व्हाट वर द ऑब्स्टिकल्स? the residents resisted. Why the residents resisted? What were the points? If it is for development, people should accept that, but why the people were not accepting that? Once it's done, what are the pitfalls? Why it took too long? How much money is incurred? Whether that succeeded, I mean, after that, the problem that was there, whether that problem was solved. So we can talk about development, we can talk about the government policies. By just one example, we can talk about even about corruption. I mean, so many issues can be talked about. So when we do this, but अगर हम ये example US के एक flyover से उठा के ले आएंगे, तो वो चीज़ किसी की, nobody will be able to relate. जो बसंत विहार में आसपास भी रहता होगा, कभी गुजरा होगा, वो समझ लेगा उस example को तुरंत. So we have to have such kind of live examples. और media education को बहुत ही lively बनाने की ज़रूरत है. हमने बहुत बोरिंग कर दिया है सारी एजुकेशन को.
और उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, मतलब आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबडी। जब तक मीडिया एजुकेशन इंटरेस्टिंग नहीं होगी, हमारी डिलीवरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, जब तक एक एक स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हम सारे टीचर्स अपनी नौकरी करते रहेंगे और वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एनीथिंग। अगर स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आते तो देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड, बजाय इसके कि हम ये कहें कि सब नालायक हैं, क्यों नहीं आते हैं और सबको फेल कर देंगे और सबको शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस कर देंगे। ये बड़े शॉर्टकट्स हैं। हमें सोचना पड़ेगा देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड क्यों नहीं आ रहे। मे बी there are socio-economic factors as well, there may be political factors as well, there may be policy issues as well, सारे factors हैं, but beyond that हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे जो जो द वे वी हैंडल एवरीथिंग, वहाँ कहाँ प्रॉब्लम है जिसको हम क्या रेक्टिफिकेशन करके और इम्प्रूव कर सकते हैं उस सिस्टम को। तो हमारा बड़ा सिस्टम बड़ा ही स्टेल, बहुत पुराना और बासी हो गया है एजुकेशन का, और मीडिया एजुकेशन में भी ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो वो हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ का मतलब हुआ जैसे भी रील मेकिंग का हमने एग्जाम्पल एक दिया, इसी तरह के और 10 एग्जाम्पल आने चाहिए और 10 आइडियाज़ आने चाहिए। और कैसे हम सीधे सीधे जो भी स्टूडेंट काम कर रहा है उसको कैसे इंटरेस्टिंग होगा, कैसे उसको रिकग्निशन मिलेगा और कैसे वो फ्रंट में होगा। टीचर्स को बैक सीट लेनी पड़ेगी यहाँ पे। हमारा काम आइडियाज़ के लेवल पे है, हमारा काम एग्जीक्यूशन के लेवल, एग्जीक्यूशन टू द एक्सटेंट दैट वी मेक श्योर दैट द वर्क इज़ डन। एग्जीक्यूशन डज नॉट मीन कि डंडा लेके हम पीछे लग जाएं, तो उसके लेवल पे है। हमारा काम मोटिवेशन के लेवल पे है, हमारा काम फैसिलिटेट करने के लेवल पे है। टीचिंग तो इन ए वे ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुकी है। पूरी दुनिया में जितनी भी नया थॉट आ रहा है, सभी लोगों का ये मानना है कि अब टीचिंग वर्ड तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट अब टीचिंग जैसा कुछ है नहीं। टीचिंग तब थी जब इंटरनेट नहीं था। तो जब 1980s में टीचर पढ़ाता था तो उसके पास एक्सेस होता था नॉलेज का, स्टूडेंट के पास कोई एक्सेस ही नहीं होता था, तो वो पूरी तरह से टीचर के ऊपर डिपेंड रहता था। तो टीचर का जो था वो हायर पेडिस्टल पे टीचर होता था। अब जो मेरे टीचर के पास है वो स्टूडेंट के पास है, सब कुछ कॉमन है। तो अब एक तरह से लेवल प्लेइंग हो गया। तो अब टीचर का काम बहुत लिमिटेड बचा। टीचर का काम जो अवेलेबल हैं चीज़ें उनको समझा देना है, वो जहाँ क्वेरीज है उनको एड्रेस कर देना है और कुछ ऐसा काम करवाना है जिससे उनकी लर्निंग हो जाए। और जहाँ वो दे फील दैट द स्टूडेंट फील लाइक इम्प्रूविंग देमसेल्स, इम्प्रूविंग देयर स्किल्स, इम्प्रूविंग देयर थॉट प्रोसेस, ये वहाँ तक हमें स्टूडेंट को लेके आना है। तो अब ये बड़ा मुश्किल सा काम है, मतलब कहना आसान है, मैं भी कह रहा हूँ मुश्किल है, बट आई टेक अप दैट चैलेंज एंड ट्राई टू डू समथिंग और द अदर टू रिमूव दैट ऑब्स्टिकल। जो भी बैरियर है उसको हमें कहीं हटाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो केस स्टडी मैंने सोच के टॉपिक में दिखा था, केस स्टडी के बारे में बहुत सारे तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उन्हें पता ही है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे एड्रेस करता हूँ चीज़ों को। लेटेस्ट तो सबसे ज़्यादा पीयूषा ही बता सकती है। तो केस स्टडी का मतलब क्या है कि दिस केस स्टडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लॉ में तो द ओनली मेथड दे नो इज़ केस स्टडी, जो कल खुराना मैम ने बताया अभी था, उनके पास तो वही तरीका है। बट हियर इट इज़ बियॉन्ड दैट। द कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ केस स्टडी इज दैट व्हेन वी रेफर टू सम जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, वो एक प्रेसिडेंस हो जाता है, वो नज़ीर हो जाता है, उसके इर्द गिर्द ही हम सारी चीज़ों को समझते हैं लॉ में। क्योंकि लॉ में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, व्हाट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज़ रिटन इन द बुक ऑफ लॉ, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ जजमेंट्स हैव बीन डिलीवर्ड अराउंड दैट बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स। बट इन मीडिया एजुकेशन, the way I do it in my teaching, we have to pick up the live cases. Live cases means जो ऐसे लीगल केसेस भी हैं जो अभी प्रोसेस में हैं, जिनमें फाइनल जजमेंट नहीं आया है। बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं जो रोज़ सुनवाई होती है, सालों साल, 5 साल 10 साल सुनवाई हो रही है, जब तक जजमेंट नहीं भी आया तो लॉ वाले तो वेट करेंगे जब जजमेंट आएगा। हमारे लिए वो आज ही इम्पॉर्टेंट है।
जैसे राइट टू एजुकेशन को, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके इंडियन एक्सप्रेस यही करता है काम। ऐसी ऐसी चीज़ें वो आरटीआई में निकाल के लाते हैं विच इज़ नॉर्मली नॉट पॉसिबल, आएगी ही नहीं हमारे पास। तो ये लगातार ये हमारे लिए एवरी थिंग इज ए केस, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस इज ए केस। अगर अभी ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस आई गिव यू वन एग्जाम्पल, लाइक एवरीबडी वुड हैव नोटिस्ड कि इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अभी 4-5 साल में बहुत काम किया है, ठीक है। नाउ नई फैक्ट्रीज आ रही है, नए नए तरह के हथियार बन रहे हैं, एंड अब नाउ दिस इज अ केस for our students, whichever paper we are teaching, whether we are teaching as part of CI, wherein border disputes, defense and all that is there, whether we are teaching this as part of the development communication, whether we take it as an economic issues, wherein if a factory is being put up, so many jobs are coming, the technology is coming and all. So we should pick up such kind of things, and then we should give students such kind of assignments wherein they are working on the things which are happening right now around us. So like अभी मेरे पास है नहीं, जैसे मैं कल का एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही लाइव है, CI के लिहाज से होगा। अभी वहाँ पे सिएटल में एक काउंसलर है इंडियन, 4 टाइम काउंसलर है, शी हैज़ started an agitation on caste based discrimination in Seattle among Asian communities, और predominantly Indians की बात है। और उससे पहले भी एक पूरी स्टडी आई है यूएस में, जहाँ पर जितने इंडियंस हैं वो किस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो शेड्यूल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। They are living in the US, they are working there, but then all kind of discrimination is happening, right? हालांकि कल उसके 2 दिन के अंदर पिछले काफ़ी सारा उसका बैकलैश भी हुआ है। बाकी जो इंडियंस हैं, मैं कल देख रहा था, उन इंडियंस में ज़्यादा, उन इंडियंस का ये व्यू पॉइंट है कि ये गलत प्रचार है, हम इंडियंस ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो, हमारे यहाँ तो कास्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में ही नहीं है, तो यहाँ कहाँ से होगा। और जितने लोग ये कहने वाले हैं वो सारे ब्राह्मण हैं, त्रिवेदी जी, शुक्ला जी, सारे ऐसे लोग हैं। तो ठीक है, अब हम CI में पढ़ा रहे हैं इंडिया में कास्ट बेस्ड सिस्टम। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम इस तरह की चीज़ों से रिलेट करेंगे अपनी टीचिंग में, तब हम कुछ एक व्यू दे पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। क्योंकि आज के समय में जब हम मीडिया एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, वी हैव टू हैव एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। हम जो यहाँ पे, हालांकि मैं मोदी जी की बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, बट स्टिल यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम लोकल बात करें लेकिन ग्लोबल हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो हम अपने आसपास की बात करें, जो मैं कह रहा था, लेकिन हमारी थिंकिंग में ये होना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल है कि हम तो सोच रहे हैं यहाँ कास्ट सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है या काफ़ी उसको चोट पहुँचा दी, और वहाँ वो ग्रो कर रहा है दूसरी जगह। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी पढ़ाई में भी, अपनी टीचिंग में भी, वी हैव टू हैव सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स जो बिल्कुल लाइव हैं, और हम स्टूडेंट को असाइनमेंट ही लाइव असाइनमेंट दें। एक एज ए केस स्टडी, जैसे कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज, जैसे कि असम का ही केस ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग इन असम दीज डेज। एनीबडी एल्स हु कैन टेल? ठीक है, यू नो, एनीबडी एल्स हु कैन टेल मी कि असम में अभी क्या हो रहा है, विच इज द मोस्ट सीरियस थिंग हैपनिंग देयर? एक मिनट रुको, और किसी को बताने दो। क्या, व्हाट इज दैट हैपनिंग थिंग? अच्छा, और कोई बताए? एनीवे, सो दिस प्रूव्स माय पॉइंट, टीचर्स कहाँ लैग कर रहे हैं। सब्जेक्ट नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, वो तो इन एनी केस दैट्स एक्सपेक्टेड। यू हैव डन योर मास्टर्स, यू हैव डन योर नेट, यू हैव डन योर PhD, दैट्स एन एसेंशियल थिंग विच इज एक्सपेक्टेड ईच वन ऑफ अस, कि सब्जेक्ट तो पढ़ के ही आए हैं, दैट इज़ वाई वी आर हियर। बट उसके आगे क्या?
हम नहीं पढ़ा सकते कोई भी टीचर हो जब तक कि हमें ये नहीं मालूम कि हो क्या रहा है हमारे आसपास। मैं DCI का जब भी क्लास लेता हूँ किसी भी बैच में यही बताता हूँ कि क्या मीडिया एजुकेशन के लिए क्या चाहिए। सिर्फ 5-6 चीज़ें चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज तो कहीं नहीं है मेरे स्कीम में। किसी भी स्टूडेंट को, और वो टीचर्स पे भी अप्लाई करता है, किसी भी स्टूडेंट को मीडिया एजुकेशन जब लेने आया है उसको पहले चीज़ अपनी सोसाइटी को जानना है, अपने देश को जानना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है, अपने लीगल सिस्टम को जानना है, अपनी हिस्ट्री को जानना है, अपने हेरिटेज को जानना है, अपने फ्रीडम मूवमेंट को जानना है, और अपने इकोनॉमिक सिस्टम को जानना है, पॉलिटिकल सिस्टम को। बस हो गई मीडिया एजुकेशन, यहीं से शुरू यहीं ख़त्म। इसके आगे तो फिर सब्जेक्ट नॉलेज है, जो नोट्स भी दे दिया, बता भी दिया, PPT दे दी कि PR कैंपेन ऐसे होता है, ऐड कैंपेन ऐसे होता है। बट आपको पता ही नहीं कि ऐड कैंपेन आप मंगल ग्रह पे थोड़ी कर रहे हैं, हम इंडिया में कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं अपने लोगों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में। कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। तो मीडिया एजुकेशन में सारी जितना हमने डिस्कशन किया, विद ऑल रिगार्ड्स टू ऑल गुड प्रेजेंटेशंस, बट यहीं पे फंस जाते हैं सारे टीचर्स। असम में मैं 2-3 मिनट में बता देता हूँ, विच इज़, आई मीन, जस्ट एन एग्जाम्पल। आई कैन कीप ऑन गिविंग यू। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरी क्लास में कोई भी टीचर आ सकता है, कोई आता नहीं कभी बैठने के लिए। वो कभी मेरी 2-4 क्लास करे तो अगर वो चाहेगा तो उसकी बत्ती जो है जल जाएगी। मैं एक घंटे के क्लास में 10 एग्जाम्पल लेता हूँ इस तरह के। असम में चाइल्ड मैरिज एक्ट है, सबको पता है। मिनिमम एज है मैरिज की, वो भी पता है, 18 साल और 21 साल है। हालांकि चेंज होने की बात चल रही है। तो असम में क्या किया है, चूंकि चाइल्ड मैरिजेस बहुत हो रही हैं, असम का तो अभी लाइव केस है, राजस्थान में सब बहुत सारी जगह होता है, ऐसा नहीं कि असम में हो रहा है। तो असम में बहुत बड़े पैमाने पे ये है। अब जो सरकार है मौजूदा, उन्होंने उसको ठीक करने का तरीका निकाल लिया। उन्होंने कहा जहाँ चाइल्ड मैरिज हुई है FIR करो, अरेस्ट करो। एक सोशल प्रॉब्लम को आप लॉ एंड ऑर्डर की तरह हैंडल कर रहे हैं। अगर किसी मीडिया टीचर, मीडिया स्टूडेंट को नहीं पता तो मीडिया की क्या पढ़ाई हम करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीरियस इशू। हमें क्या करना चाहिए? मीडिया कहाँ आता है यहाँ? अगर सपोज ये हो रहा है तो मीडिया का रोल क्या है? इस चीज़ को हाईलाइट करे, इसके बारे में लिखे। बडिंग जर्नलिस्ट का क्या काम है? इस तरह की चीज़ों पे निगाह रखें, ब्लॉग लिखें, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें। मीडिया टीचर का क्या काम है? स्टूडेंट को असाइनमेंट दें इसके ऊपर कि असम में जो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है इस पे अपना एक असाइनमेंट करके लाओ। तभी टीचर की ग्रोथ होगी, तभी स्टूडेंट की ग्रोथ होगी। नहीं तो ये हम सब धोखे में रख रहे हैं अपने को कि हम मीडिया एजुकेशन कर रहे हैं। हम एक्चुअली नौकरियां कर रहे हैं। सारे लोग नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, कागज़ भरते रहते हैं, सैलरी ले लेते हैं। हम समझ रहे हैं कि हम मीडिया एजुकेटर हो गए। ये मीडिया एजुकेशन नहीं। वहाँ पे करीब 2 या 3 हज़ार अरेस्ट हो चुकी हैं फॉर द सच ए सीरियस थिंग। और हम मीडिया एजुकेटर्स बैठे हुए, हमें पता ही नहीं है इतनी। और सारी 15-16 साल की लड़कियों को अरेस्ट किया है, और उसमें हाँ, फैमिली मेंबर्स को। और उसमें तमाम लड़कियां जिनको अरेस्ट किया है 15 साल की लड़कियां हैं, कोई 5 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 7 महीने की प्रेग्नेंट है। मीडिया एजुकेशन में हमारा काम अपने स्टूडेंट को सेंसिटाइज करना है कि समझें ये हो क्या रहा है, और फिर ये समझें कि उनका रोल क्या है। कल को जब वो मीडिया इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री का मतलब आज तक में जॉब लेना नहीं होता है। हम सब कहते हैं इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए क्या तैयार कर रहे हैं उसको तो पता ही नहीं इस देश में क्या हो रहा है। ना टीचर को पता, ना स्टूडेंट को पता। आप किसको किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एक चाइल्ड मैरिज एक्ट को वो कह रहा है कल चीफ मिनिस्टर, हम इसको एनफोर्स कर रहे हैं क्योंकि ये लड़कियों की जल्दी मैरिज हो रही है, ठीक नहीं है। अगर जल्दी मैरिज हो रही है इसका मतलब क्या है? लोग सोशली बैकवर्ड हैं, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास इकोनॉमिक मीन्स नहीं है, तो जल्दी से लड़की की शादी करो, निकालो। तो कितना ये इट्स अ डेवलपमेंट इशू। हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं और हम इस तरह के इश्यूज को छूते ही नहीं हैं। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? वो बता देंगे कितने कितने वेस्ट के कितने सिद्धांत हैं प्रमोद उसमें
ये वाला मॉडल डेवलपमेंट का, वो वाला मॉडल, ये भी तो एक मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है डेवलपमेंट का? उसको एड्रेस करो जो हमारे पास है, हमारे आसपास हो रहा है। तो मीडिया इज कंप्लीटली ए डिफरेंट थिंग। मीडिया एजुकेशन यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन के बाद आई कैन एग्री विद विशाल कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, इंडस्ट्री में कुछ और हो रहा है। हम पढ़ा ही नहीं रहे कि क्या जो पढ़ाना है वो हम पढ़ाते ही नहीं। और जब वो एक रिपोर्टर होगा, जो असम में रिपोर्टर पोस्टेड होंगे, वो ये कवर कर रहे हैं जो कि उन्होंने पढ़ा नहीं। हमें वो पढ़ाना है जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज हैं, उन्हीं को पढ़ाना है। तो ये सारे टीचर्स को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, तभी एक हम सही ऐसा मॉडल बना सकते हैं जहां हम सोशल इश्यूज़ को भी टेकअप कर रहे हो, जहां इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी टेकअप कर रहे हो। हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, चाहे वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हो, पीआर पढ़ा रहे हो, एड पढ़ा रहे हो, बेसिक इज़ दिस। हम इस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, इस सोसाइटी की समझ हमें होनी चाहिए, इस सोसाइटी एक सर्टन लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक इतनी हमारा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए जो कल को स्टूडेंट जाएंगे इंडस्ट्री में पोजीशन लेंगे कि एक 15 साल की प्रेग्नेंट लड़की को अगर अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है तो उसकी स्टोरी कैसे लिखनी है, ये हमें पता होना चाहिए। ये समझ देने का काम हमारा है जो अभी हम मीडिया की टीचिंग कर रहे हैं। क्या एज ए टीचर हम इस काम को कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारे मीडिया एजुकेशन फ्यूटाइल है। वी आर सिंपली ए पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ डिग्री मैन्युफैक्चरिंग मशीन। लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, लाख रुपए देते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, उनका कॉपी चेक कर लेते हैं, वो डिग्री लेके खुशी खुशी जाते हैं। हमने समझ लिया, हमने एजुकेशन दे दी, उन्होंने समझ लिया 3 साल में डिग्री मिल गई। इससे ज़्यादा नहीं है सिस्टम। तो ये हमें इस चैलेंज को लेना पड़ेगा। और नहीं तो ठीक है, मैं भी PFDP 5-6 कर दी और उसके बाद 2-4 हो जाएंगी, उससे सिस्टम बदलने वाला नहीं। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव इस तरह की एक्सरसाइज को करने के पीछे भी यही है कि शायद टीचर्स की भी थोड़ी आंखें खुलें और स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि उनको क्या करना है यहाँ से पढ़ाई करने के बाद। दैट इज़ वाई आई ask the student to come over, because we have to build a system which is transparent, जहाँ कुछ छुपाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बंद कमरे में टीचर्स बात कर लें और स्टूडेंट को पता ना चले क्या हो, आई डोंट बिलीव इन दैट। इसलिए कुछ लास्ट ईयर मैंने जब ये किया, कुछ रिजर्वेशंस थे लोगों के, फिर भी मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया कि हम जिसके को पढ़ा रहे हैं उसको भी पता हो, उसकी बात भी हमें पता हो कि उसे क्या चाहिए, हमें पता हो कि हमें उन्हें क्या देना है। तभी हम मीडिया एजुकेशन में कोई जस्टिस कर सकते हैं।